Good evening, dear students. Today we are going to solve some of the important questions based on the trigonometric ratios and the value of the trigonometric ratios for a specific angle we have learned. So, student, we have already learned these trigonometric ratios can be sine theta, cos theta, all these things. Say sine of theta, cos of theta, tan of theta, cosec of theta, sec of theta, then cot of theta, if theta be any angle. So for this, the theta was any angle or acute angle of a right angle triangle. It was like this. Now, if this theta is taken as 0 degree or 30 degree or 45 degree or 60 degree or 90 degree, then all these 6 trigonometric ratios, sine, cos, tan, cosec, sec or cot, for all these 5 angles, that we have to keep in mind. Okay, because these angles are considered as a specific or a standard angle. These are the specific angles. Means, what is value of sine of 0 degree? What is value of sine of 30 degree? What is value of cos of 45 degree? What is value of tan of 60 degree? What is value of cosec of 90 degree? Means any of these combinations, means 6 trigonometric ratios for each angle. These things we have to keep in mind. For that, in last videos, I have derived what is the value of sine for each of these angle, cos for each of these 5 standard angle, tan for each of these 5 specific angle, cosec, sec, cot, and that we have tabulated. Okay, that table is this one. Okay, how we have done everything we have, or I have explained last day. Based on that, I had also solved some of the question and the homework was also given. A student, you just recall we have started from this one. See quickly, for calculating this 30 degree, 60 degree, 45 degree, we were taking a reference triangle. What are those reference triangle? Those are important. Okay, earlier this table was empty, but later on I had collected the values and I have put. So for 45 degree, we were taking the isosceles right angle triangle, in that each of the acute angle is 45 degree. Considering one of the side, the hypotenuse and other side is determined, then all these sine of 45, cos of 45, tan of 45, these things we have calculated and we have tabulated it. Similarly, for this 30 degree and 60 degree, we can use the equilateral triangle, because each angle of equilateral triangle is 60 degree. But for making that as a right angle triangle, we were using the angle bisector, which was also the perpendicular bisector of the front side. This way we were getting both 60 and 30 degree from the same triangle. Okay, so in this case, the side A and A by 2 is known. The other perpendicular or this divider length, that is calculated, and that was calculated as A root 3 by 2. Then we had calculated the sine of this 30 degree by considering the triangle of 30 degree, or sine of 60 degree by considering the angle A, which is 60 degree. Okay, this way we had calculated all these values for the 30 degree and 60 degree. Okay, earlier we had calculated 60 degree. These are the values for 30 degree from the same triangle or one part of the right angle, this equilateral triangle. Okay, student, so this one. After that we had filled this. Then for the other 0 degree and 90 degree, we were using the approach system.
in which for this angle to be 0 degree, these hypotenuse need to be merged with their base. Okay, so it was this one. So hypotenuse become equal to base, so the angle becomes 0. In this case, the perpendicular P become 0. Apply the formula for sine theta cos theta. P becomes 0, so sine 0 0. So this way we had calculated for this 0 degree. We had calculated this. Now for 90 degree, what we need? We need this A to be approach to B, so that in this case the hypotenuse become equal to perpendicular. So this is the condition required. Hypotenuse, when hypotenuse is becoming equal, means while this A point is going to coincide with B, the perpendicular, the base becomes 0, this theta angle become 90 degree. So substituting this B equals to 0, P is equals to H, and this 90 degree, we are able to get all the ratios for 90 degree. So these were the things. So considering this, we had formulated this table. This table is very useful because the questions are given, say find the value of sine of 30 degree into cos of 45 degree. Just 30 degree, 45 degree, their sine value and cos value is just substituted. That's why these angles are taken as a specific or reference angle. The question was like this one that we had already done. Okay, student, these were given as you the homework. But some more important question based on these concepts are framed. Okay, where when the angle is given, then you can calculate its trigonometric value. Say 30 degree is given, you can calculate sine of 30, cos of 30, or sine of 30 plus cos of 30, all these things. Another condition, if a specific angle, say sine of theta is given as 1/2, then what is the value of theta? That is just the reverse of this. But the same also for this specific angle we can determine. Otherwise, for general angle, we have to go for trigonometric table, which is beyond your scope. Okay, it is this one. So this table is very useful. So very first, these values are substituted for the given expression. कि आप उसमें साइन कॉस 30 डिग्री 45 जिसके भी वैल्यूज आपको चाहिए आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन में. आप उसे एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है. दूसरा टाइप का ये बनता है कि आपको कोई भी साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ ए प्लस बी इटसेल्फ इज द एंगल, so that is equated to 1/√3. Then what will the value of this a plus b? Okay, so how to get that? So keep in mind that kind of question based on this standard angle is solved quickly, and at your level the question will be asked for the standard angle. Say sine of a plus b is equals to 1/√3. It will not be given because 1/√3 is not in this table for sine. Are you getting? For the sine we have the 1/√3. No, it could be the √3/2 or 1/√2. ऐसा रहना चाहिए. So what will be given? Tan of a plus b is equals to 1/√3. तब आप a plus b एंगल को निकाल सकते हैं. So आपके लेवल में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो जस्ट इन्हीं वैल्यू को इक्वेट किया रहेगा स्टैंडर्ड एंगल के साथ, तब आप वहां से एंगल निकालेंगे. बट इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए angle a plus b, a minus b is given something, then you have to get the value of individual angle a and b. That can also be done. Okay, so what those kind of question, everything we are going to learn today. A student, so how this table is used, इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं. Last time we have also drawn the conclusion. Please recall those conclusion. We have drawn 3 important conclusions. What were that? The first conclusion was this one: sin theta value always increases from 0 to 1 while the angle is increasing. We are always taking the angle is increasing. This way you can quickly allocate what will be the value. Cos theta value is decreasing, means it is a decreasing function from where to where? 1 to 0, though the angle is continuously increasing. Okay, means cos of 0 is 1. Tan is increasing, not from 0 to 1 but 0 to infinity, means it can go up to 1000, lakhs, any kind of thing.
means it can be more than 1. Like you can observe very quickly, tan of 60 degrees is root 3. Root 3 is what? 1.73. So it is more than 1. So this way you can understand. So these are the 3 important things that we have to keep in mind for quickly writing. And please go through the videos of last class, जिससे आपको ये क्विकली कैसे हम याद रखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, एवरीथिंग वी हैव डन. ओके स्टूडेंट, सो आज हम इस टेबल को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कुछ यदि सम एंगल इज इक्वेटेड विद दिस गिवन रेफरेंस वैल्यू, देन हाउ इंडिविजुअल एंगल इज कैलकुलेटेड, दोज थिंग लेट अस गो. स्टूडेंट, सो इस टेबल को यूज करते हुए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई से दिस इज योर एक्सरसाइज 8.2 of our textbook. This I have taken. Here in this case you are getting all the given angles are the specific angle, 30 degree, 60 degree, sine, cos, tan, everything we are knowing. So from this table we have to just substitute the values in this question. Okay, let me solve just one of the question. मैं question number 1 का let me solve the question number 5. यही थोड़ा आपको बड़ा लगता है, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं. देखिए, these are very easy. Student, the expression is like this. So whatever the given expression, that is our 5 cos a square of 60 degree plus 4 sec a square of 30 degree minus tan a square of 45 degree whole have to be divided by the sine a square of 30 degree plus cos a square of 30 degree. Okay student? Student, it is the square. You are already knowing, if I am given with sine a square theta, it simply means what is the value of sine theta? This have to be a square. Example, if I am given with say sine of say 60 degree or sine a square of 60 degree, this means it is what is the sine of 60 degree, that value we will write, and that have to be squared. Okay, means this become sine of 60 degree is what? Root 3 by 2. These values you have to mug up. The more practice you will do with the question, बहुत easily याद हो जाते हैं. So now this square is for numerator as well as the denominator. Root 3 square is 3, but 2 square is 4. So this is the answer, or this is the value. Okay, so in the similar fashion here, what we are observing, this 60 degree, 30 degree, these are the, and 45 degree, these are the standard or a specific angle. So their values can be from the table. So that table is nothing but that table is your calculation of, who have turned off my video student? आप लोगों में से देखिए हमारा वीडियो, आप लोग को अथॉरिटी है कि आप मेरा ऑडियो वीडियो बंद कर सकते हैं. I think it has gone wrong. Okay, yes, it have gone a bit wrong. Okay, हाँ, वेब कैम से ये लैपटॉप के दूसरे कैम में चला गया था. Okay, it have switched by automatically. Okay, don't worry. But you people also have the authority to turn off my mic and my video. तो आप हमारे माइक को कभी ऑफ मत कर दीजिए गलती से. 9th में 1 or 2 स्टूडेंट हैव डन मिस्टेक. इनिशियली बच्चे बहुत शैतान होते हैं. 9th के नए हमने बैच लिए थे, उनको पता ही नहीं कि हाउ स्ट्रिक्ट आई एम आई. तो वो ऐसे ही शरारते जो स्कूल में करते हैं करना शुरू कर दिया. उनको 2 दिन हमने क्लास से निकाल दिया कि आप 2 दिन क्लास ही नहीं अटेंड करेंगे. सो उसके बाद कोई करता नहीं. सो वी आर हियर टू लर्न. सो स्टूडेंट, तो आपको पहले दीज आर दी स्पेसिफिक एंगल, तो स्पेसिफिक एंगल के जो वैल्यूज हैं ये हमें जस्ट उस टेबल से यहां पुट करने हैं. तो ये आपको ध्यान में रखने हैं. गेटिंग नो? सो अचल, व्हाट वाज द योर क्वेश्चन कि सब कैसे सॉल्व करते हैं? तो वो टेबल के वैल्यूज हमें याद रखने हैं. पुराने वीडियोस देखिए हम कैसे याद रखते हैं, सारे टेक्निक्स आपको बताए गए हैं. बहुत 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाया गया था स्टूडेंट. सो व्हाट इज दिस? दिस आर दी स्टैंडर्ड एंगल. तो जब भी ये स्टैंडर्ड एंगल है तो 5 तो आप ऐसे ही रखिए,
कॉस ऑफ 60 डिग्री। हर बच्चे को याद रहना चाहिए कि कॉस फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। अभी 1 होता है 0 पे, मीन 0 डिग्री पे, 0 हो जाता है 90 डिग्री पे। तो जब हम आगे 30, 45, 60 पे जाएंगे तो ये घटना शुरू करेगा। और कौन कौन से वैल्यूज रहते हैं? वैल्यूज हमारे पास केवल 3 ही है बीच में लिखने के लिए, या तो √3/2, या तो 1/√2, या तो 1/2 ओनली। ओके, क्योंकि 10 वैल्यू में हमें 1 मिलते हैं बीच में। सो स्टूडेंट देखिए, कॉस फंक्शन अभी डिक्रीजिंग है, तो हमें कंफ्यूजन किस में होता है? याद आपको है कि 1/√2 ओनली फॉर 45 डिग्री, so confusion is among the √3/2 or 1/2. Okay, now keep in mind √3 is greater than 1, so √3/2 is larger than 1/2. Okay, and this cos function is decreasing and the angle is here 60 degree, bigger angle, so lesser among √3/2 and 1/2. What is that value? That value is our 1/2. तो आपको जस्ट ऐसे फॉर्मूले को रिकॉल कर करके ये वैल्यू पुट करने, ना कि पीछे टेबल देख कर करके। हमने टेक्निक्स आपको बताए थे। ओके, दिस सेम आई हैव यूज्ड। सो cos of 60 is our 1/2 that I will substitute and this will be the square. अभी हमने 1/2 पुट किया, तो ये सही है या नहीं है? तो आप यहां से देख सकते हैं पीछे के टेबल से, that I have listed है। देखिए cos में आइए एंड इधर 60 डिग्री में आइए, तो देखिए ये अपना वैल्यू 1/2। कैसे हमने याद किया अभी भी आपको बताया। अच्छा, दिस प्रैक्टिस यू हैव टू डू। आप हमारे ये जो टेक्निक जिसको हम यूज करके क्विकली लिखते हैं, आप भी प्रैक्टिस करिए। ये टेबल को रटना नहीं पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि टेबल में 2 ही 3 वैल्यूज है, या तो 0 है, 1 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है। ये 4 वैल्यूज और 5 वैल्यूज तो आपको याद रहेंगे ही, लेकिन कौन कब हो जाएगा, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का टेक्निक बताया वो यूज करके आप क्विकली इसे लिखें। हाँ स्टूडेंट, सो दिस वे वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट दिस cos ऑफ 60 डिग्री इज गोइंग टू गिव अस 1/√2. So this 1/√2 I am going to, sorry, 1/2 I have substituted here. So taking this as the square plus the 4 is here. Now sec of 30 डिग्री। अभी बच्चे को ये डाउट होता है सर sec of 30 डिग्री को क्या रटना है क्या? नहीं बच्चे, आपको जस्ट cos ऑफ यदि 30 डिग्री पता है तो sec of 30 डिग्री आप इजीली निकाल लें। अभी cos ऑफ 30 डिग्री क्या होगा? अभी हमने बताया कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, कंफ्यूजन √3/2 एंड 1/2 में है। तो cos 30 इज स्मॉलर देन 60, सो रेशियो में √3/2 एंड 1/2 में हमें बिगर वैल्यूज लेने पड़ेंगे। 30 स्मॉलर था तो बिगर क्या है? √3/2। सो हमें √3/2 cos ऑफ 60 डिग्री के लिए आया। तो जब हम इस सेक लिखेंगे तो जस्ट इसका उलट करके लिखेंगे। सो √3/2, सो √3 अभी हम डिनोमिनेटर में लिख लें, 2 को न्यूमरेटर में लिख लें, यहां पे इसे हम बस स्क्वायर कर दें। इट्स सो सिंपल टू राइट। आ रही बात समझ में? आई होप यू माइट बी गेट। आफ्टर दैट कमिंग फॉर द नेक्स्ट, tan of 45 degree. It is very easy to remember, or very easy that you are already knowing. What is that? It is 1, because sin of 45 degree 1/√2, cos of 45 degree 1/√2. So dividing them, we are getting the ratio is 1. So it is 1 square. हो गया, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट। अच्छा, आर यू गेटिंग? नीचे आइए साइन स्क्वायर, तो साइन ऑफ 30 डिग्री सोचिए, साइन ऑफ 30 हमारा 30 डिग्री स्मॉलर एंगल है। गुड, सो 30 डिग्री इज आवर स्मॉलर एंगल, साइन इज इंक्रीजिंग, तो √3/2 एंड 1/2 में देखना है कौन स्मॉलर है। 1/2 इज स्मॉलर, सो साइन ऑफ 30 के लिए हमारा 1/2 आ जाएगा, यहां पे इसका स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस अभी फिर चले cos ऑफ 30, फिर से 30 60 में कंफ्यूजन होता है। अब cos ए डिक्रीजिंग फंक्शन, तो 30 वाला हमारा बिगर वैल्यू रहेगा, बिगर वैल्यू √3/2 होता है। ओके, सो टेक दैट एज √3/2 square. Are you getting this value? So this way we have substituted. जस्ट ये वैल्यू डाल दिया, स्क्वायर करिए, सॉल्व कर लीजिए। ये फ्रैक्शन के एडिशन आपको आने चाहिए।
क्लास 5 से लेकर के 9 तक यही सिखाया जाता है बच्चे, हम नंबर्स के एडिशन कैसे किए जाए, डेसिमल का फ्रैक्शन के साथ कैसे, इंटीजर का फ्रैक्शन के साथ कैसे, एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन के साथ कैसे, फ्रैक्शन में कोई स्क्वायर है तो उसे कैसे, बॉड मास। अभी तक 9th तक आपको और इवन 8th तक खासतौर से यही सिखाया गया है कि हाउ टू ऐड और सिंप्लीफाई द नंबर, यही सब चीज रहता है। बट आप लोगों ने वो भी नहीं किए होंगे मन से, तो ये प्रॉब्लम 10th में आती ही है। ओके, let me solve it step by step, students. So for that even I'm preparing some of the videos, आप चाहे तो वो बाद में I will upload on the YouTube, you can view those videos कि फ्रैक्शन के एडिशन कैसे होते हैं, आप ही लोगों के लिए हमने सेपरेटली बनाया है, and I will upload it. So student, this is the 5, it will remain as it is. 1 by 2 is 1 by 4, applying the board mass. Okay, plus this is 4 and this 2 is 4 by 3 minus 1 whole divided by 1 by 4 plus 3 by 4. Okay student, these are very simple. तो अब आप बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। अब आप न्यूमरेटर में देखिए, इस सबको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे टीचर बताते हैं क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5 करो, 4 करो, 3 करो, ऑल दीज थिंग्स आर ओके, बट ऑल दीज थिंग्स आर दे चाइल्डिश और बहुत बच्चों को सिखाने वाला चीज। जब आप बड़े हो जाते हैं तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए। व्हाट इज दैट? जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में भी आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आप पहले न्यूमरेटर वाले का ही एलसीएम लेंगे। तो ये देखिए, न्यूमरेटर वाले के एलसीएम को लेने के लिए हमें 4 and 3 and 1 के नीचे 1 है, उसका एलसीएम लेंगे तो ये 12 आ जाएगा। हाँ, 4 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप देखिए 5 इज हियर, अभी 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलता है, सो इट इज मल्टीप्लाइड विथ 3। देन व्हाट इज द 4 4 ऑलरेडी 16 इज हियर, 4 4 numerator में 16, but this is to be multiplied by 12 divided by 8 is giving us the 4, so by that 4 this have to be multiplied. Now minus 1, numerator में 1 है but denominator was 1, that is going to your 12 times, so this one have to be multiplied with the 12 times. The same thing you also have to do for the denominator. Student देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, आप एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम 4 ही है। एलसीएम क्या होता है आप चैप्टर 1 में भी आपको बताया हूं, दोबारा जाकर के देखिए उन वीडियोस को, इवन आई हैव अपलोडेड इट आल्सो। सो दिस विल रिमेन एज 1, दिस विल रिमेन एज 3। हाँ, इतना सिंपल सा चीज रहता है। ये सिंप्लीफिकेशन तो कोई भी कर ही सकता है, एक बच्चा भी कर लेगा। सो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर को पहले हैंडल करिए। सो राइट दोज थिंग, इट इज 15 प्लस it is our 64 minus of 12 divided by 12 and numerator में it become 4 by 4। देखिए डिनोमिनेटर में 4 by 4 है तो आप इसे कैंसिल करके 1 आप समझ के आप इसे छोड़ सकते हैं, बट न्यूमरेटर में देखिए it will just get added and other will get subtracted। अभी बच्चे को पहले 15 को 64 में ऐड करेंगे, फिर 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना नहीं करना रहता है। आप यदि एक अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता चल जाता है कि मैं यदि 15 को 12 में से यदि मैं 12 सब्ट्रैक्ट कर लूं, we will remain with the 3, so only 3 need to be added with 64, so it become 67 by 12 whole divided 1 by 1, 1 by 1 is same as 1, so this is nothing but 67 by 12 by 1 only। तो बाई 1 को हम छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर में बाई 1 उसका डिफॉल्ट वैल्यू रहता है, सो दिस इटसेल्फ इज द आंसर। ओके, ये इतना सिंपल है, इसमें कहां कुछ था। सो अचल प्लीज ट्राई विद द अदर क्वेश्चन। बाकी भी क्वेश्चन इतने ही इजी है जिसमें आपको tan of 45 डिग्री वैल्यू पुट करने रहेंगे, साइन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो दिस वेयर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू कीप इन। नाउ स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू गो फॉर द अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन। दूसरे काइंड ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, राइट इट क्विकली। द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, सो नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आपको एंगल यदि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सर्टेन एंगल इज गिवन फॉर सर्टेन वैल्यूज, तो वो एंगल क्या है ये निकालना। अभी हाँ बोलिए बोलिए अचल, व्हाट इज योर डाउट? नो सर, नो डाउट।
ओके स्टूडेंट, अभी आपने जैसे ये ले लिया, द अदर थिंग इज दैट से साइन ऑफ थीटा इज गिवन एज √3/2। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। सो स्टूडेंट, आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है आप उसी को ध्यान में रखें, उसके साथ आप मर्ज कराएं। अभी आप ये देखिए होता क्या है, दिस वैल्यूज यू आर गोइंग टू टेक। मैं सॉल्यूशन यहीं पे करता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अभी यू आर ऑलरेडी नोइंग साइन ऑफ 60 डिग्री गिव अस √3/2। ओके, and we are given with sine of theta is equals to √3/2. It means what? The theta is comparable with the 60 degree. अब बच्चे को ये भी डाउट आता है कि सर आपने कैसे लिख लिया, मैथमेटिक्स में कैसे हो गया? तो मैथमेटिक्स में भी आप इसे लिख सकते हैं, consider whatever the given thing that ratio as 1 and what is the standard thing that we are obtaining from the table as 2. So from 1 and 2 what we are getting? Their right hand sides are equal. So 1 and 2 implies sine of theta is equals to sine of 60 degree. So what does it mean? So keep in mind here the sine are only the trigonometric ratios taken. किसी भी इक्वेशन में यदि आप सेम चीज मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड तो वो इक्वेशन अनडिस्टर्ब रहता है, आप ऐड कर दीजिए दोनों साइड तो अनडिस्टर्ब रहता है। ऐसे यदि आपने किसी इक्वेशन और किसी एंगल के दोनों साइड यदि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सेम काइंड ऑफ रेशियोज, कीप इन माइंड, मींस लेफ्ट में भी यदि आपने साइन लिया है, राइट में भी साइन लिया है, तो वो भी वैल्यू इक्वल होगा फॉर ए स्पेसिफिक एंगल, एक्सक्लूडिंग द जनरल सॉल्यूशन। आपने कॉस लिया तो भी दोनों साइड या तो साइन लीजिए, दोनों साइड कॉस लीजिए। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन ले लिया, राइट हैंड साइड में कॉस ले लिया, तब इक्वल नहीं होता है स्टूडेंट। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। So that's why now we can say we can leave this ratio sine and sine. So ultimately theta is going to give us 60 degree. So theta value is what? 60 degree. तो हम मैथ्स में लिख करके ऐसे सॉल्व करेंगे, इतना सिंपल है। लेकिन ये चीजें क्या है, यदि हमें जस्ट एमसीक्यू में पूछा जाए, इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें याद है कि वॉट एवर द साइन ऑफ थीटा इज गिवन एज √3/2, but we are knowing that this √3 value is sine of 60 degree. So just I am going to equate this one. So theta is equals to 60 degree. So whether you write by this way only or by this way, means writing everything equation 1 and 2 then equating, removing the sign, you will get the same result. Okay student? सो इतना सिंपल होता है। बट अभी इसको यूज कैसे कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चे ये कहते हैं कि नहीं सर ये साइन थीटा का मीनिंग होना है, यदि θ1 इज इक्वल टू θ2 तो क्या मीन साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू साइन ऑफ θ2, तो क्या θ1 θ2 इक्वल होता है? क्यों θ1 θ2 इक्वल हो जाता है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कि फिजिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। इसके लिए आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.1 में, एंड आई हैव लिस्टेड इट हियर। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को आपको मैं करके दिखाता हूं। व्हाट एवर आई हैव यूज्ड देयर, द सेम थिंग आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर। इसको आपको फिजिकली समझ में आएगा कि ये एंगल क्यों इक्वल हो जाता है। यदि साइन वैल्यू या कोई भी स्पेसिफिक ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू यदि इक्वल है तब ये एंगल क्यों इक्वल हो जाता है, ये अभी आपको मैं इसमें समझाता हूं। देखिए ये क्या है। नीरज, दिस वाज योर क्वेश्चन ना, आप इससे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमने इसी चीज को डायरेक्टली पीछे यूज कर लिया है। ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन आई हैव डायरेक्टली यूज्ड हियर इन दिस, आई हैव यूज्ड दिस डायरेक्टली। बट बहुत बार बच्चे ये यूज कर लेते हैं, बट यदि यही चीजें प्रूफ करने के लिए आए कि नहीं आप प्रूफ करके मेरे को दिखाइए मैथमेटिक्स में, तब बच्चे नहीं समझ पाते या फिर नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। तो हम अभी आपको यही प्रूफ कर करके दिखाते हैं। दिस वाज आवर मेथड 1, दिस वाज आवर मेथड 2, बोथ आर द सेम थिंग, नॉट डिफरेंट मेथड। बट हम ये एंगल क्यों इक्वेट कर देते हैं, तो देखिए मैं यहां करके आपको दिखाता हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जो है ये हमें ट्रायंगल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ओके, सो अभी आप ये देखिए इन दिस क्वेश्चन angle A and angle B are the acute angles such that cos of A is equals to cos of B. Okay student,
अभी आपने किसी भी दो ट्रायंगल में आपको cos ऑफ ए एंड cos ऑफ बी आपको इक्वल दिया गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे एक ट्रायंगल में भी ड्रॉ कर सकते हैं या सेपरेटली दो अलग अलग ट्रायंगल में भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए, मैं यदि ये मानूं कि मैं अभी दो ही ट्रायंगल मान लेता हूं, these are the acute angle, but for easy understanding I am going to consider two right angle triangle. Consider this as a, मैं इसे a मानता हूं बट इसको मैं p एंड q मानता हूं ताकि मेरे को ये एंगल a मैं बोल सकूं। एंड दूसरा मैं एक और भी ट्रायंगल लेता हूं, so in this triangle we are taking this right angle triangle for our convenience. हम जनरल ट्रायंगल भी लेकर के दो पार्ट में राइट एंगल और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम सोच और देख सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं, बट ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है। The other angle is given as B. Consider PQ, consider this as CD. In this case the P is 90 degree, in this case the C is 90 degree. This is the angle what we are calling this as the B. हाँ स्टूडेंट, तो देखिए हमने दो ट्रायंगल ले लिए। स्टूडेंट आप चाहे तो, मैं इसमें सॉल्व करूंगा, आप चाहे तो एक ही ट्रायंगल भी तो आप ले सकते थे। एक ही ट्रायंगल में इस एंगल को आप ए लीजिए, इस एंगल को आप बी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। So it is not given that whether this A is equals to B in single triangle or two different triangle, and also not talking about the type of triangle, whether you are taking the right angle triangle or an equilateral triangle, which kind of triangle you are taking. Okay student, तो आपको क्या करने हैं, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए यहां पे इसको ले लिया है। लेट मी कीप इन माय फ्रंट सो दैट आई कैन जस्ट वॉच इन द कैमरा आल्सो। बट ये अपने कन्वीनियंस के लिए हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ताकि आपको इजीली समझ में आए। आप एक में भी ले सकते थे, दैट कुड आल्सो बी पॉसिबल। नाउ नीरज यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, व्हाट अबाउट द एंगल गिवन means let me call this as cos of A and this as cos of B. okay student, so अभी आप जरा ये ऑब्जर्व करिए कि मेरे को यदि मैं इस ट्रायंगल से cos of A लिखता हूं, what does it mean? This is the ratio of base by hypotenuse. okay, and what about the cos of B I am going to write here, this will also be base by हाइपोटेन्यूज। अभी देखिए हमने दो डिफरेंट ट्रायंगल लिए हैं, तो बेटर है कि आप इसे बेस B1 लीजिए, H1 लीजिए, ठीक है। इतनी आप बातें आपको आई समझ में। इसे आप B2 लीजिए, H2 लीजिए। लेट मी पुट इट हियर, दिस इज आवर B1, दिस इज आवर H1, दिस इज आवर B2, दिस इज आवर H2। स्टूडेंट तो ये क्या मिलने वाला है अपने को, ये मिलने वाला है H2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर। ये क्या मिलने वाला है, H1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। स्टूडेंट anyway if we are able to prove this B1 and B2 are equal and also H1 and H2 are equal, in that case we can say this H square minus B square will also be equal. okay student, तो अभी आप बस सिंप्लिसिटी के लिए आप ये समझ लीजिए, at your level we are just considering for convenience कि जब ये एंगल इक्वल है तो हमने दो ट्रायंगल भी ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किए हैं कि इसके बेस एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जा रहे हैं। मैं दो सेपरेट ट्रायंगल लेकर के, बट नीड नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल। अगेन मैं आपको बोलता हूं, उसके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं बाय अप्लाइंग द सिमिलर ट्रायंगल, बट कन्वीनियंस के लिए ट्रिगोनोमेट्री में आप इसे समझ सकते हैं कि मैं इक्वल ही कंसीडर कर लेता हूं। लाइक व्हाई, सो यदि साइन ऑफ थीटा इज गिवन एज 2/5, तो मैं मान लेता था कि P is 2, H is 5, then we were calculating the B. Or even if we are taking the 2K and 5K, then we were calculating the B. The same thing, the K was coming, K was cancelled. इसीलिए कन्वीनियंट रहता है कि मैं जस्ट इसको अभी इक्वेट कर देता हूं। नाउ व्हाट इज द गिवन कंडीशन, दीज टू आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज गिवन हियर,
given is that cos of A is equals to cos of B. It simply means whatever the B1 by H1 we are going to take is equal to B2 by H2. Okay, it is like this one. हम सिमिलर ट्रायंगल से ये चीज पढ़ चुके हैं कि यदि दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल के प्रोपोर्शनल हैं तो वो एंगल इक्वल होते हैं. सो यहां से यदि आप सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सो व्हाट इज द एंगल विच इज इंक्लूडिंग दिस बी एंड एच? ऑब्जर्व दिस, द बी एंड एच इंक्लूडिंग एंगल इज, यानी दिस पूरे रेशियो को हमें केवल एंगल में लिखना है अभी, नॉट द कॉस. दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर सिमिलर ट्रायंगल. इट इज दिस वन. और यदि ऐसे यदि आपको डाउट हो रहा है तो आप देखिए सिमिलर ट्रायंगल में हम इसे फिट कर लेते हैं. सो दिस इंप्लाइज, आप जस्ट इसे रीअरेंज कर लीजिए ना, B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू दिस H1 बाई H2. आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है कि ये आपके रेशियोस B1 बाई B2 ये इक्वल है H1 बाई H2 के. तब आपके ये एंगल मींस दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे ही. इट इज वेरी मच श्योर. एंड दिस इंक्लूडिंग एंगल विल आल्सो बी इक्वल. सो दिस रेशियो सिंपली गिव्स अस द एंगल A इज इक्वल्स टू, वहां पे द सेकेंड ट्रायंगल में हमने जो एंगल B लिए. हाउ दिस? दिस इज नथिंग बट बाय अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट. ये सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमें क्यों यूज करना पड़ा? क्योंकि दो ट्रायंगल हमने अलग अलग लिए हैं. सो इस तरीके से अपने को ये दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए. नाउ इफ वी आर टेकिंग द सेम ट्रायंगल और से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उस केस में आप यदि दो ट्रायंगल बस ऐसा लीजिए, हमने लास्ट डे आपको बताया था कि if this is the angle A, you are writing this as cos of A, it means it is B by H. and यदि सेम ही चीजें यदि आप वही यदि आप इधर B ले रहे हैं, cos of B, if these two are equal, cos of A is equals to cos of B. इसका मीनिंग है कि इसका जो बेस है यही बेस इसका भी है. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल. यही H इसका भी है. अभी देखिए, जब ये बेस ये हाइपोटेन्यूज यदि इक्वल हो गए, इसका मीनिंग है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो यू मे कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आल्सो. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. दिस इज द अप्रोच 2 और मेथड 2 ऑफ थिंकिंग. ये हमने आपको मेथड 1 जो मोस्ट जनरल मेथड है सिमिलर ट्रायंगल का, इसे अप्लाई किया. अभी आप बोलेंगे कि सर कि हम दो क्यों अलग अलग ट्रायंगल लिया है, एक ही ट्रायंगल ले लेता हूं. चलिए, तो वो भी हम मेथड 3 भी हो जाएंगे. देखिए, अभी आपने क्या किया, हम आपके लेवल में ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, बट ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी नहीं होता है. तो ये देखिए, मैं इसी को मान लेता हूं, ये A है, ये B है एंड ये C है. स्टूडेंट, आप भले ही ये ऊपर के दो मेथड नहीं समझे होंगे, बट ये तीसरा मेथड आप पक्का समझ जाएंगे, बहुत इजी है. देखिए, वट एवर द हाइपोटेनस H वी आर कंसीडरिंग, if we are going to write this as base B for this angle and this as perpendicular P, I am writing denoting this AC by B and BC by P, okay, and AB by H. यहां से यदि आप cos of A लिखेंगे तो इसका क्या मीनिंग है? cos of A B by H, ये आपने लिख लिया. बट ये P एंड B हमारा डिनोटेशन है, ओके. बट यदि मैं यहां से cos of B लिखूं, what will be that value? Even we have taken this as the, though this is the base, though we have denoted it by P, so it comes as P and the H is same.
It is given that these two angles are equal. So write cos of A equals to cos of B. This tells us B by H is equals to P by H. H कैंसिल हो गया तो ये B is equals to क्या आ गया, PR नहीं का आया. इसका मीनिंग क्या है, B and P यदि इक्वल है, when the two sides are equal, their corresponding or angle in front of these two sides will also be equal. अभी देखिए B के सामने होने वाला एंगल कौन सा है, स्मॉल b के सामने होने वाला एंगल कैपिटल B, दिस इज द एंगल. P के सामने होने वाला एंगल A है, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B नहीं आ गया. That is a different thing. Okay, it is a right isosceles triangle. That is a different thing. But and each angle is 45 degree. But here we are writing in the term of A and B. So angle A is equals to angle. So इतने तरीके हैं आपको दो एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए. आप कोई सा भी मेथड यूज करें, you will get the full marks. The best one is this method one, कि आप जस्ट दो ट्रायंगल ले लीजिए, रेशियोज लिख दीजिए एंड सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से सीधा सीधा आप ये लिख दीजिए. सिमिलर ट्रायंगल हम लोग और डिटेल में बात करेंगे. आई विल जब हम सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे तो इस कंडीशन को कैसे कैसे अप्लाई किए जाए कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, वी विल प्रूव देयर आल्सो. ओके, सो ये इतना सिंपल रहता है. So this way we have proved if the two ratios are equal then corresponding angle are equal. इस चीजों को याद रखना है. यदि दो रेशियो किसी एंगल का सेम है तो दोनों एंगल आपस में सेम होते हैं. इन्हीं चीजों को हम अप्लाई करते हैं दूसरे वैल्यूज फाइंड आउट करने में. सो व्हाट आर दोज क्वेश्चन, लेट अस गो देयर. Student, now we will move faster. Whatever the questions I have selected, I will solve those questions. All these questions I am going to solve. Student, अभी आप बहुत इजीली बतला सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस. So in this question it is given that if sine of theta is 1/2 then what is the value of theta. अभी आपने देख लिया क्या है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. आप सिंपली ऐसे लिखेंगे, बट दिस 1/2 इज साइन ऑफ हाउ मच डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री. So this implies whatever the left hand side sine of theta you carry it. Now both side contain the sine. यही आपको ध्यान में रखना है कि दोनों साइड आपको साइन लेकर करके आना है या कॉस लेकर आना है. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम ही लेकर करके आने हैं. ओके स्टूडेंट, सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है. ये आपको किसमें पूछेगा, एमसीक्यूज में. चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में फटाफट फ्रेम कर देता हूं. से इफ 3 tan square theta minus 1 is equals to 0 then find value of theta. स्टूडेंट, यही क्वेश्चन जब फ्रेम कर दिए जाते हैं और दूसरे आपके या तो मॉक टेस्ट या किसी बुक में दे दिए जाते हैं तो माने जाते हैं बहुत स्टैंडर्ड हो गया. ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दी इजीएस्ट, बशर्ते कि आप बस ऊपर के कॉन्सेप्ट समझते हैं. और लास्ट डे हमने जो बताया है कि कभी भी हमें एंगल या वेरिएबल या इक्वेशन को समझने या सर्च करने तो सारे के सारे वेरिएबल को हम एक जगह कलेक्ट करते हैं सिंगल पॉइंट पे, तब हम उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल पाते हैं. वही चीजें हमें यहां भी करना है. देखिए हमें थीटा निकालना है यहां पे. कैन एनी स्टूडेंट टेल मी? सर 30 डिग्री. वेरी गुड. देखिए बिना कुछ किए ही समझ में आ गया. सो स्टूडेंट, हमें थीटा निकालने हैं तो जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में, यही यहां पे भी है. सो स्टूडेंट, व्हाट इज हियर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन नीड नॉट बी द 10 n number or 100 number of questions can be framed. So what is here, 3 tan square, it is our tan square theta. So take this tan square theta is given as, और let me write first -1. मैं पूरा ही इसे कॉपी कर लेता हूं.
-1 इज इक्वल्स टू 0। आपको देखिए थीटा पे आपका ध्यान होना चाहिए कि एक वेरिएबल है, हमें एक साइड में लाने हैं। सो रीअरेंज दिस, सेंड ऑल द कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। सो tan square theta is going to give us square of, why I'm not able to write it here, थीटा 1 को आपने राइट हैंड साइड में भेज दिया, ठीक है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। अभी देखिए थीटा पे हमारा ध्यान रखना है, थीटा तक हमें पहुंचना है। सो पहले तो हमें tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 1/3 लिख लेंगे। अभी देखिए थीटा तक पहुंचने के लिए हमारे पास यहाँ पे tan ऑफ थीटा, इसका ये मीनिंग है कि दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। सो दिस स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए स्क्वायर रूट, तब तो हमें थीटा मिलने वाला है। सो tan ऑफ थीटा विल बी √ ऑफ 1/3। स्टूडेंट √ ऑफ 1/3 अभी आपको पता है व्हाट इज दिस वैल्यू? सो tan ऑफ थीटा 1 का √ दिस स्क्वायर रूट कैन बी ब्रोकन फॉर न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर। अभी जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए जब आप ब्रेक करेंगे तो √3 तो बाहर आएगा नहीं, सो ये ऐसा ही रह जाएगा। अभी आप देखिए, अभी हमें थीटा चाहिए। थीटा हमें कब मिलता है? जब स्पेसिफिक एंगल के रेशियोज पता होते हैं तो। सो राइट दिस कैन बी रिटन एज हाउ मच, दिस इज नथिंग बट दिस इज tan ऑफ व्हाट वैल्यू? देखिए यहां पे हमारे को tan दिया हुआ है, तो आप tan ऑफ स्टैंडर्ड एंगल लीजिए। सो tan ऑफ 30 डिग्री इज दिस वन। आई बात समझ में? इट मींस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। अब मैं इस tan को और इस tan को छोड़ सकता हूं, जो अभी हमने पीछे इतना बड़ा जो लेक्चर हम लोगों ने समझा। सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज सो सिंपल आंसर। ये एमसीक्यूज में पूछेगा, ये कोई ज्यादा नहीं, और हो सकता है कि आपके 2 मार्क्स में भी पूछ लें। सो क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ओके स्टूडेंट अभी आप लोग जरा हमें क्विकली कर करके एक क्वेश्चन दिखाइए। सो फाइंड a if 1 - 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 0। यदि आपको ये दिए हुए हैं तो जरा निकाल के दिखाइए क्विकली। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन है। स्टूडेंट हु हैव डन प्लीज पोस्ट योर आंसर क्विकली। Very good. What about other students? 45 days. Very good. All the students are getting the same. अरे भैया कांस्टेंट एक साइड रखो, वेरिएबल दूसरे साइड भेजो। थीटा हमारा और a यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, सब लोग यही करिए। सो 1 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 0। आप इस पूरे को ही चाहे तो इस साइड भेज लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 1 इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर a, bring this 1/2 is equals to sin square of a. ओके, सो sin स्क्वायर से पहले अब आप इसे बाहर निकाल लीजिए। हाँ, सो राइट दिस इंप्लाइज 1/√2 is equals to sin of a। sin स्क्वायर a वैल्यू नहीं है हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल में, sin a और sin थीटा का वैल्यू पता है। सो व्हाट इज दिस 1/√2? दिस इज नथिंग बट sin ऑफ 45 डिग्री। तो यहां देखिए साइन दिया हुआ था इसीलिए हमने साइन लिया, यहां कॉस नहीं ले लेंगे, अदरवाइज दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन कि कॉस एंड साइन कैन नॉट बी कैंसिल्ड, दो फॉर 45 डिग्री इट इज इक्वल। तो यदि कॉस रहता मेरे को दिया हुआ तो मैं कॉस फंक्शन लेता। हियर द साइन फंक्शन इज गिवन,
So I have taken the sine ratio or sine function. May these two ratios can be left. So 45 degree is our A और the value of A is 45 degree. आई बात समझ में? स्टूडेंट ये इतना सिंपल होता है. आई बात समझ में बच्चों को? कभी भी नहीं आई? इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट. So let me solve one more question, or you people please tell me one more question. Say if 3, all right, cot a square a plus b minus of 1/3 is equals to 0, then you have to find value of, here individually a and b you cannot calculate, but a plus b total you have to calculate. Yes, tell me quickly. बहुत इजी है, करने की भी जरूरत नहीं है. आप पहले आंसर तो ऐसे बतला दीजिए, फिर आप करके निकालिए. Sir. So 60 degree. वेरी गुड, 60 degree. वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? बाकी बच्चे सब खेल रहे हैं क्या या सो रहे हैं? So 60 degree. वेरी गुड. स्टूडेंट देखिए, तो आपको डाउट होता है, कॉट देख करके फीवर आ जाता है, ऐसा लग रहा है. कुछ नहीं, इसको टैन में समझा करिए, कोसेक को आप साइन समझा करिए, इतना इजी होता है. लेट मी सॉल्व. बाकी बच्चों के लिए मैं सॉल्व करता हूं. आप इन सब चीजों को दोबारा घर में देखिए, मेरे वीडियोस को आप रोक करके खुद से सॉल्व करिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए. नन ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग लाइक दैट. नॉट द गुड स्टूडेंट, और जो अच्छे बच्चे उनके लिए नहीं चाहिए, बट जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप पहले लर्न करना सीखिए. जो टीचर बता रहे हैं आप खुद से अपने को इंप्रूव करिए. जस्ट हमारे अभी सुनने में तो इजी लगेगा, बट जब आप खुद से करने जाएंगे तो आपको खुद का प्रैक्टिस डालना है. So student, whatever given is, our cot square of a plus b value is 1/3. I have just rearranged it. Why I have rearranged? क्योंकि मेरे को a plus b तक पहुंचना है. इसका मीनिंग होता है कि cot of a plus b is our 1/√3. अभी यदि आपको cot का वैल्यू पता है तो यहां से अभी आप जिनको वैल्यू याद है वो क्विकली इसे लिख सकते हैं. यदि वैल्यू नहीं याद है, डोंट वरी, tan तो मिनिमम याद रहेगा ही. tan को तो हमें याद रखना ही है. इसका मीनिंग क्या है? मींस आई एम गोइंग टू सेकेंड मेथड डायरेक्टली, कि जब आप ये कर लेंगे इसके बाद अब आप इसे ये समझे कि यू आर गोइंग टू राइट इट बिलो, क्योंकि cot को हम पहले tan में बदल लेंगे. 1/tan of a plus b, that is the cot. 1/√3. Since cot of theta is 1/tan of theta, so what identity I have used? Cot of theta is 1/tan of theta. तो ये यदि आइडेंटिटी आपको पता है तो इसको आपने यूज कर लिया, क्योंकि tan वैल्यू तो सबको पता ही रहता है, बहुत इजी होता है tan वैल्यू याद करना. सो दिस आई हैव यूज्ड. अभी ये देखिए, अभी आपको क्या चाहिए, इसे या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए. सो √3 इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b, और दोनों का रेसिप्रोकल ले लीजिए, एक ही बात हो जाती है. tan ऑफ a प्लस b गोइंग फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और टेकिंग द रेसिप्रोकल, इट इज √3. What is the value of this √3 from the standard table? It is our tan of 60 degree. So equating this, what we are going to get? Theta value is, theta is the a plus b itself together acting as the theta. So it is our 60 degree. आई बात समझ में? So ये इतना इजी होता है बच्चों इसका वैल्यू निकालना. और जिसे यदि याद है तो वो यहां से डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि यहाँ cot का फंक्शन है, तो cot का कौन सा वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये अपने को cot ऑफ 60 डिग्री होता है.
means I have just equated this cot of A plus B as 60 degree. So this implies now this cot function can be left. So A plus B is going to give us 60 degree. So this was the straightway method if you are able to recall cot value. But cot में बहुत बार बच्चों को cot cosec इस समय प्रॉब्लम होती है, तो आप उसे cos एंड साइन में समझें. पहला ये हैबिट आप डालिए, बाद में जो आपको वैल्यूज याद हो जाएंगे तो आप क्विकली लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप आई एम क्लियर. एनी डाउट इन दिस? नो वन? ओके, नाउ लेट मी क्विकली गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां की ये भी चीज अपने को यूज आने वाली है. ए प्लस बी का वैल्यू निकालना अपने को यूज आने वाला है. लेट मी गो देयर एंड कलेक्ट द क्वेश्चन. स्टूडेंट, the same was this one, cot of a plus b is equals to root 3, then find the value of a plus b. इसका आंसर अभी मिल गया. आई होप सबको अभी ये मिल गया होगा. व्हाट इज दिस वैल्यू? आप घर में कर लेंगे. देखिए cot of कितना रूट 3 होता है, मीन्स tan of a plus b become 1 by root 3. So it is tan of 30 degree. So if you are going to equate the angle, so this will be your 30 degree. मिल जाएगा? Getting the same answer? Hope so. कैसे किया? अभी जो क्वेश्चन किया वो इससे ज्यादा अच्छा था, जहां स्क्वायर को पहले हमने रूट में बदला फिर इक्वेट किया. नाउ लेट मी गो फॉर दीज क्वेश्चंस, दीज 2 क्वेश्चन और दीज 3 क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट, लेट मी फर्स्ट गो फॉर दिस क्वेश्चन जो आपको पूछे हुआ है, एंड बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चे को लगता है कि अरे ये कितना टफ क्वेश्चन है यार, कहां कहां से पूछता है. बेसिक चीजें यदि हमें पता है तो कोई क्वेश्चन कहीं से भी नहीं बनता है, सब हमारे अपने को याद रखना रिक्वायर्ड है. स्टूडेंट, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उस पे बेस्ड क्वेश्चन ये लीजिए. स्टूडेंट, अभी आप लोग जरा हमें बताएं. सॉरी सर. डबल पेस्टेड. हाँ बोलिए. सर 1. इसका आंसर? हाँ सर. वेरी गुड, बहुत अच्छा. अदर स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट हैव डन दिस? वेरी नाइस. व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट? स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत इजी है. अभी जो हमने बताया, विवेक आज ज्वाइन नहीं किया है क्या? या बोल ही नहीं रहा है? ऑन लीव? ओके, लीव इट. What about the given value if they are in the standard form? तो पहले आप वो अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए. What is given is the cos of alpha is 1 by 2 and the other thing tan of beta is 1 by root of 3. Then we are interested to find the sine of alpha प्लस बीटा. स्टूडेंट, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का पहले वैल्यू मिलेगा तब तो हम टेबल यूज करेंगे. सो पहले ये जो गिवन है मींस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 by 2, इसको आप लिखिए 1 by 2 इज नथिंग बट दिस इज कॉस ऑफ व्हाट वैल्यू इज 1 by 2? कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, आपको याद आना चाहिए. रूट 3 by 2 बड़ा होता है, छोटा 1 by 2 होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का हायर एंगल. सो इट इज कॉस ऑफ 60 डिग्री. सही है स्टूडेंट या गलत है? सर सही है सर. ओके गुड, एटलीस्ट यू पीपल आर नॉट स्लीपिंग. सो यहां से अभी आप देखिए आप क्या करेंगे, ये कॉस फंक्शन को छोड़ देंगे. मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. एक वैल्यू हमें यहां से मिला. ऐसे ही बीटा हम यहां से निकालने वाले हैं. सो दिस कैन बी इक्वेटेड टू tan ऑफ हाउ मच ऑफ दिस tan ऑफ 30 डिग्री. सो दिस tan ऑफ बीटा when equated to tan of 30 degree, so beta will be 30 डिग्री. ये पता चल गया.
देयरफॉर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपने को चाहिए, तो पुट कर दीजिए, दिस इज नथिंग बट साइन, कीप इन माइंड अल्फा इज आवर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बट ये दो एंगल तो ब्रैकेट में ही है ना, मींस दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 डिग्री. व्हाट इज द साइन ऑफ 90 डिग्री? इट इज 1 इज द आंसर. सो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में बनाए जाते हैं. ऑप्शन ए आपको 0 दे देगा, बी आपको 1 दे देगा, सी आपको से कोई और सा वैल्यू दे देगा, 1/2 दे देगा, डी नन ऑफ दिस करके दे देगा. बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं ये कहां मिल पाता है, यहां से वैल्यू तो पता ही नहीं चलेगा, तो वही लोग गलतियां कर देते हैं. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. सो द करेक्ट आंसर इज दिस 1. ओके स्टूडेंट, इतना इजी क्वेश्चन. इसी को और हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या हो जाता है. लेट मी गो नाउ इन the next question. Let me just copy a question from your book. Okay, let us take this question now. ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट करके रखे हैं, बट आपके लिए मैं जस्ट देखिए ये क्वेश्चन अभी जो हमने सिखाया, इस पे tan of a is 1/√3, देन sin a cos a, मींस यहां से आप पहले a निकालेंगे, फिर आप बस वैल्यू निकाल लेंगे. लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चन. Student, please do this question. यहां जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, सेम ही कॉन्सेप्ट यहां भी है. सॉल्यूशन बहुत इजी है बच्चों, जो दिया हुआ है उससे आप पहले एंगल का वैल्यू निकालिए, दूसरे जगह उसी को पुट कर दीजिए. व्हाट इज गिवन? स्टूडेंट, it is given that a right angle triangle, though we have not learned the complementary angle concept and even that is also not required for this question. तो ये देखिए, आप पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें कि एंगल A is this one, take this as A, this as B, this as C. So right angle at C. स्टूडेंट, तो अभी आप देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे जरा ध्यान से पढ़ लीजिए. तो ये दिया हुआ है कि राइट एंगल इस C पे है, तो ये एंगल क्या होगा? तो ये देखिए, व्हाट एवर दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज B. नाउ इट इज गिवन दैट tan of A is 1/√3. What does it mean? Means what is the value of this A? This is equals to tan of 30 degree. Means this gives us the value of A is our 30 degree. ये वैल्यू पता चल गया. जब एक राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये बी एंगल कितना होगा? सो दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 माइनस ऑफ 30, दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. क्यों? तो ये आपको आगे लिखने हैं. ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो एंगल A प्लस एंगल B ये अपने को 90 डिग्री होगा ही जब एक एंगल सम प्रॉपर्टी, नथिंग एल्स. देखा बच्चों आप लोगों ने कैसे निकल गया? सो एंगल B का वैल्यू हमने यहां निकाल दिया. द एंगल B इज आवर 60 डिग्री. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? साइन ऑफ A, कॉस ऑफ B, कॉस ऑफ A, साइन ऑफ B. देयरफॉर what is the expression? The expression is our sine of A cos of B plus cos of A plus sine of B. This thing. Okay, student? So this thing, it is in multiplication. Write this. It is in multiplication. So sine of B.
अभी मेरे को पहले क्या पुट करूंगा, a and b का वैल्यू पुट करूंगा. wherever a is there in this question I will substitute 30 degree, so it becomes sine of 30 degree. The next one is cos of b is 60 degree, then plus cos of a is our 30 degree, then sine of b is our 60 degree. Now student what to do? कुछ नहीं, बहुत इजी है. अभी हमें फिर से वापस टेबल में जाने हैं, क्योंकि ऑल दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल. सो साइन ऑफ 30, साइन 30 बच्चों को याद है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. साइन 30 मींस छोटा रहेगा. यस, इट इज 1/2. कॉस ऑफ 60 फिर से याद करें, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल बड़ा है तो छोटा रहेगा 1/2. किस किस में कंपैरिजन ले रहे हैं, छोटा बड़ा, √3/2 एंड 1/2. इसी में कंफ्यूजन आता है. आप ये हैबिट डालिए, घर में प्रैक्टिस करिए. प्लस cos of 30 degree, 30 is a smaller angle, cos is also decreasing function, so cos of 30 बड़ा रहेगा, √3/2 हो जाएगा. इनटू साइन ऑफ 60, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन, 60 बड़ा है तो हमें बड़े वाले वैल्यू लेने हैं, ये हमारे √3/2 होने हैं. ओके, जस्ट सिंप्लीफाई दिस. फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 1/4 प्लस √3 आ जाएगा बाई 4. आपने 4 ले लिया, 1 + 3 ले लिया, ये 4/4 आ गया. आंसर कितना आ गया, 1 आ गया. इतना आंसर इजी है. एनी डाउट? देन प्लीज आस्क, otherwise the question is very easy. Even this was asked in 2008 and बाद में भी पूछे हुआ है, हमने यहाँ कॉपी किए हैं ये इस समय, but even it was asked I think in 2018 और 19 रिसेंटली भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं स्टूडेंट. तो आपको जहां भी कोई स्टैंडर्ड रेशियो मिल जाए जो टेबल से मैच करता है, आपके दिमाग में दौड़ने चाहिए कि ये एंगल मेरे को देने वाला है. जब एक एंगल पता चल गया तो बाकी कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहे उस एंगल का, हम वो सब उस टेबल का यूज कर लेने वाले हैं. और यदि राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड यदि कहीं लिखा रहे, इसका मीनिंग है दूसरा कोई एंगल है वो हमें मिलने वाला है. सो इट इज गिवन एज राइट एंगल एट सी एंड हियर द गिवन वाज द एंगल बी, जबकि बी का तो कोई वैल्यू नहीं दिया था, बट हमने यहां बी कैलकुलेट किए इस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को यूज करके. ओके स्टूडेंट, so it was so simple. Any more doubt then please ask, otherwise जितने कॉन्सेप्ट हमने आज बहुत ज्यादा एनालिसिस कर लिए. So you people are I think now able to do one more question, जिसमें कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को यूज करेंगे. सेम कॉन्सेप्ट है. So we are getting how these questions are framed. सिंपल छोटे छोटे यदि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जोड़ दिए जाते हैं तो बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाते हैं. फिर तो बच्चे और समझते हैं क्या ये बहुत डिफिकल्ट है या बहुत स्टैंडर्ड है. रहता कुछ नहीं, वो सब हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. तो अभी हम लोग ये देखेंगे. लेट मी गो फॉर दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट आप घर में ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इस वीडियोस को आप दोबारा देखिए एंड इन क्वेश्चन को आप दोबारा करिए. घर में एक क्वेश्चन खुद से लेकर के आपको करने हैं. टेक ऑल दिस एज द होमवर्क. लेट मी सॉल्व वन ऑफ द क्वेश्चन, अदर यू विल सॉल्व. स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है. अभी जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं उसी पे बेस्ड है ये. दिस इज फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई हैव फ्रेम्ड. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज गिवन, जो चीजें दी हुई हैं उनको पहले आप लिखिए. tan of a plus b is equals to √3 and what is the other, tan of a minus b is equals to 1/√3. स्टूडेंट तो अभी आप जरा थोड़ा सा बस ध्यान दें. जो चीज दी हुई है हमें यहां पता चलता है √3 1/√3, ये हमें टेबल में ये वैल्यूज हैं, ये रेशियोज हैं. हमारे दिमाग में दौड़ना चाहिए कि जो एंगल है, व्हाट इज द एंगल हियर, द एंगल इज a plus b itself. Here a minus b itself. Is a plus b and a minus b the same thing? No, they are different. So मेरे को यदि a plus b का एक वैल्यू पता चल जाए, a minus b का दूसरा वैल्यू पता चल जाए, तो मैं a एंड b को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व कर सकता हूं. फिर मैं a एंड b का वैल्यू निकाल सकता हूं. द क्वेश्चन इज सो मच सिंपल. सो अप्लाई.
So write this. These thing में the two conditions are given. So हम दो अलग अलग चीजें सॉल्व करने वाले हैं. So this tells us tan of a plus b. What is the value of root 3? This is tan of which angle? tan इंक्रीजिंग फंक्शन है. रूट 3 1 से ज्यादा हो जाता है तो हमें हायर एंगल में जाने हैं. वो हायर एंगल हमारा कितना होता है? तो 60 डिग्री होता है भाई स्टैंडर्ड में, क्योंकि 90 तो इंफिनिटी होता है. सो यहां से आप क्या देख सकते हैं? a प्लस बी इज जस्ट 60 और 60 डिग्री. दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन. नाउ कमिंग फॉर दिस वन. सो व्हाट दिस इज गोइंग टू टेल अस? tan ऑफ a minus b. This is going to give us 1 by root 3. tan function lesser है, इन tan function increasing function है, तो ये हमें tan of 30 डिग्री ही रखेंगे. So this is going to give us the value of a minus b. Either 30 degree or only you write the 30 mean the same thing because these are the degree. Now what we have to do? We have to solve the equation 1 and 2. Solving 1 and 2. अब सॉल्व करने के लिए आप पूरा इस तरीके से लिखें. क्या करेंगे? आप फिर से लिख लीजिए ना. a plus b is equals to 60 and a minus b is equals to 30. ओके स्टूडेंट, हमने 1 and 2 को लिख लिया. अब मैं एक बारी से जब ऐड करता हूं तो ये देख रहे हैं कैंसिल हो जाता है. 2a is equals to 60 plus 30 is 90. This implies a is equals to 90 by 2. ये तो याद है ना हर बच्चे को? Linear equation in two variable we have learned. So value of a is this one. Again next time हम क्या करने वाले हैं? This implies whatever a we are getting is 45 degree. This is the one of the answer that we have obtained. Again हमें b निकालना है तो हम a का वैल्यू किसी में पुट कर दें. So 1 is going to give us what is the value of a? A is our 45 plus b is 60 degree. So what is the value of b? It will be 60 minus of 45 degree. This is equals to 15 degree. This implies the value of b is 15 degree. Okay, this is the answer. इतना simple. Therefore a is equals to 45 and b is equals to 15 degree. देख लिया आपने? सो इतना सिंपल आंसर है स्टूडेंट्स. इसी में बच्चे को बहुत डाउट होता रहता है. तो यहां हमने क्या किया है? जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज है उसको हमने पहले एंगल में रिलेशन लाए ए एंड बी में, एंड उस ए एंड बी को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्व कर लिए. गेटिंग? सो क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन दिस वन. यस, नाउ स्टूडेंट इट इज योर टर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसको जरा आप हमें सॉल्व कर करके दिखलाइए स्टूडेंट. if cos of a plus b is 1 by root 2 and sine of a minus b is 1 by 2, then find this. This is the question. Please do this question. Sir, हाँ बोलिए. sir, a equal to 75 by 2. Very good. B Next. b equal to 15 by 2. Very good. मीन्स आप चाहिए तो 7.5 डिग्री भी बोल सकते हैं और बाई 2 में भी लिखे तो भी करेक्ट आंसर है. सारे बच्चे को आया क्या स्टूडेंट? आर यू गेटिंग इट? टेल मी क्विकली. Yes, sir. Very good. A student, what is given? You just write it. Cos of a plus b is equals to 1 by root of 2 and sine of a minus b is equals to 1 by 2. स्टूडेंट अब आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देखिए जिसमें कि आपको cos फंक्शन 1 by root 2 देता है. वो कौन सा है? आपको ध्यान देना है. cos में ही ढूंढना है, वो हमें 1 by root 2 देना है.
तो ये मेरे को देता है cos ऑफ 45 डिग्रीज means cos of a plus b is this much. So this implies a plus b is 45 degree. Getting? दूसरे से निकालिए, दो इक्वेशन, दो चीजें इसीलिए दी हुई हैं. What is this value? साइन ऑफ ए माइनस बी. तो अब हमें साइन फंक्शन में ढूंढना है जिसका वैल्यू 1/2 होता है. सो 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू होता है. मीन्स साइन ऑफ ए माइनस बी इज आवर 30 डिग्री. ओके स्टूडेंट, सो दिस इंप्लाइज a minus b is going to give us how much? 30 degree. This is our equation 2. अब हम a and b को सॉल्व करेंगे. So right, solving 1 and 2. What we are going to get? लिख लीजिए आप, यदि लिख के सॉल्व करना चाहते हैं तो a minus b is our 30 degree. 30 डिग्री इज एन यूनिट. तो आप लिखिए या छोड़ दीजिए, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, बट लास्ट में आप उसे डिग्री चढ़ा के लिखिए. सो गोइंग फॉर एडिशन, सो 2a is going to give us 45 plus 30 is 75. So what is the value of a? 75/2. और आप चाहिए तो इसे डेसिमल में बस लिख दीजिए, यदि डेसिमल में लिखा हुआ है तो दिस मच डिग्री, और हाउ मच इज दिस? 37.5 degree. So this implies a is equals to 37.5 degree. एक वैल्यू आ गया आपको a का. अब आप दूसरा वैल्यू निकालेंगे a का. सॉरी, so a is this much. अगेन आप 1 या 2 किसी को यूज कर लीजिए. So what is this? 37.5 plus b is 45 degree. This implies b is equals to 45 minus of 37.5. This is equals to what? How much? 7.5 degree. या आप by 2 वाले करके लिखिए, एक ही चीजें हैं. So this is going to give us b is equals to 7.5 degree. आप इसको ऐसे लिखिए और 75/2 डिग्री लिखिए. यहां डिग्री चढ़ाइए तो ऐसे करके चढ़ाया करिए. हाँ? और आप इसे नीचे वाले को भी आप by 2 के टर्म में लिख सकते हैं. और दिस इज आवर 15 डिग्री. ओके, सो दीज आर द आंसर्स. सो दीज वेर द क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड ऑन दिस. और आपने आई थिंक एंजॉय किए होंगे कि आज का क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बट ये बच्चे इवन बहुत बार प्रिपेयर कर लेते हैं बट ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं. इसी में साइन कॉस टैन थोड़े से बस बदल देते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. वो तो ये समझते हैं कि अरे बुक में तो टैन दिया हुआ था, इसमें तो टैन है ही नहीं, मैं क्या करूं. ये टैन कॉस साइन कुछ भी रहे, कॉन्सेप्ट वही रहता है. देखा आपने? तो हमने अलग अलग फंक्शन को लेकर के हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए. सो व्हाट एवर द क्वेश्चंस वी हैव लिस्टेड, all the questions we have solved. Okay student, so we are getting all these questions we have solved. Even see, this question we have solved, 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 this question we have solved. ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब आप घर में चाहे तो इसको दोबारा भी प्रैक्टिस करिए एंड इसे तो याद कर ही लीजिए, इस टेबल को. इसके बिना तो गुजारा ही नहीं होगा मैथ्स का. सो विदाउट रिमेंबरिंग दिस टेबल यू कैन नॉट गेट इवन हाइट एंड डिस्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. उसमें भी ये टेबल पूरा यूज आने वाला है. तो दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक नाउ वी शैल स्टॉप द क्लास हियर बिकॉज इफ वी स्टार्ट द न्यू क्लास वी कैन नॉट फिनिश इट. यस, द टाइम इज अप. आपका टाइम भी अभी अप हो गया है, तो हम लोग यहां स्टॉप करेंगे. स्टूडेंट, व्हाट कुड बी योर होमवर्क? होमवर्क आपका क्या हो सकता है? हाँ स्टूडेंट बताइए. सर एक्शन
ओके, एग्जाम्पल प्रॉब्लम में आप कितने कर पाएंगे? सो स्टूडेंट, राइट डाउन सम ऑफ द होमवर्क। अपने टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट जो भी बच्चे सॉल्व नहीं किए हैं, प्लीज फिनिश एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 टोटली। ओके, टोटली आप इसे फिनिश करिए। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में लेट मी सेलेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम आवर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। अपने बुक में भी है बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप अपने बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स द नोट्स, आवर नोट्स। एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये देखिए, ये सब आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप केवल आइडेंटिटी यूज करके ही कर सकते हैं। दीज आर मोस्टली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ स्टूडेंट, यहां देखिए ये क्वेश्चन है, प्लीज डू दिस। अभी जो हमने पढ़ा उसी पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन। दिस इज आवर एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये करिए। देन लेट मी गो फॉर द अदर। दूसरा जिसे आप कर पाएंगे स्टूडेंट, देखिए 5 को आप कर पाएंगे, 3 को आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 3 सेम एक्सरसाइज का। आपको डाउट हो तो आप ये वीडियोस जस्ट एंड में ड्रैग कर करके हर बच्चे देख लें कि व्हाट आर द सेम बुक। अदर वन इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। मैं यहां जस्ट पेन में लिख देता हूं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, this is also do the question number 3, the same exercise. Let me quickly search. देखिए अब थर्ड कर पाएंगे, इट वाज दिस वन ओनली। इस एक्सरसाइज से इतने ही आप कर पाएंगे। नाउ 1 2 ये सब आप कर नहीं पाएंगे, ये सब चीजें हम आपको बताने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में अभी आप कुछ भी नहीं करिए। नाउ लेट अस कम टू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज, हाँ एमसीक्यूज में स्टूडेंट देखिए, 4 tan of theta is this much, then you have to get all the other values and you have to substitute. So question number 12 we will do। क्वेश्चन नंबर 12 करिए, एक्सरसाइज 1 जैसा है क्वेश्चन नंबर 12। देन क्वेश्चन नंबर 10, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पे बेस्ड है ये। So this is our exemplar problem exercise 8.1। okay, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 करिए। You have to note it, I have not copied it here, or you can watch this। question number 12 was this one। okay, now here you can get the tan of theta, then sin theta, cos theta, you can calculate and you can do it। then स्टूडेंट ये भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। एंगल सी इज राइट एंगल, देन cos of a plus b, so a plus b is 90 degree, cos of a plus b is how much? That value you have to write it only, means cos of 90 degree। cos is decreasing function, so it is 0। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 बाद में करेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल पे है। 8 देन 4 एंड 2 1, 8 4 2 1।
सॉरी 12 करिए, क्वेश्चन नंबर 8 करिए, क्वेश्चन नंबर 4 करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करिए, क्वेश्चन नंबर 1 करिए. These are the question belonging to exercise 8.1 of our exemplar problem. These are the questions which are belonging to 8.3 of the exemplar problem. These are our textbook. These are the older question or older homework. जो बच्चे नहीं किए हैं उनके लिए हैं, जो बच्चे कर लिए हैं बहुत ही अच्छा है. स्टूडेंट एनी मोर डाउट देन प्लीज आस्क. पूछिए अभी किसी को कोई डाउट है तो. हाँ बच्चे लोग, नो डाउट टू एनी स्टूडेंट. Yes, students. So it is posted to your WhatsApp ताकि पेरेंट को थोड़ा पता चलता रहे कि हम होमवर्क दे रहे हैं. नो एनी डाउट नाउ.